وہ حوالہ نکالیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات کے اوپر آج ہم میڈیٹیٹ کریں گے۔ بائبل مقدس میں کچھ مرقوم ہے، اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے دو شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہو، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان سے کہا حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم 7ویں آیت سے آگے بعد میں جائیں گے۔ میں تھوڑا سا چاہوں گا جس کا والیوم بڑھا دیجئے اور ایک کو تھوڑی سی کھول دیجئے، باقی سارے مائک بند کر دیجئے۔ عزیزو، آج کا جو ٹاپک ہے تھوڑا سا والیوم بڑھائیے اس کا، بادشاہ کی آمد اور فروتنی میں چلان۔ بادشاہ کی آمد اور فروتنی میں، یہ پام سنڈے کے تعلق سے ایک اہم سرمن ہے۔ جو پیچھے آیات رہ گئی وہ آگے جا کے ہم اس کو پڑھیں گے یسوع کے فضل سے۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے مطابق، ایک کو کم کیجئے تھوڑی سی، تاریخی پس منظر یہ ہے، یہ واقعہ عید فصح پاس اوور کے دنوں میں پیش آیا ہے۔ اس وقت لاکھوں یہودی یروشلم میں جمع ہوتے ہیں۔ ہر سال عید فصح کے موقع پر پوری دنیا سے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اسرائیل میں آتے ہیں، یروشلم میں آتے ہیں تاکہ وہاں پر قربانیاں چڑھائی جائیں۔ اور جب خدا یسوع مسیح کا شاہانہ استقبال ہوتا ہے تو اس وقت عید فصح کی تیاری ہو رہی تھی، اور لاکھوں لوگ وہاں پر موجود تھے۔ لوگ رومی حکومت سے آزادی کی امید رکھتے تھے۔ وہ ایک سیاسی مسیحا کی توقع کر رہے تھے کہ ایک آئے گا، یشوع مسیح خرسطس آئے گا جو ہمیں رومی امپائر سے آزادی دے گا۔ لیکن یسوع ایک مختلف بادشاہ کے طور پر آتے ہیں۔ لوگ ڈیمانڈز کر رہے تھے، لوگ توقعات بنائے بیٹھے تھے کہ یہ جو بادشاہ ہے یہ ہمارے لیے ایسا کرے گا۔ در حقیقت ان کی انڈرسٹینڈنگ غلط تھی۔ جس طرح آج ہم مادہ پرستی میں پڑے ہوتے ہیں، ہماری توقعات مادہ پرستی مٹیریلزم سے باہر نہیں نکلتی ہے۔ ہمیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں شہرت چاہیے ہوتی ہے، ہمیں چیئرز چاہیے ہوتی ہے، ہمیں عزت چاہیے ہوتی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح اس سے بڑھ کر ہمیں دینا چاہتا ہے۔ خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ ارے یہ چیزیں تو تمہیں مل جائیں گی، یہ چیزیں تو تمہیں مل جائیں گی، تم کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پہنو گے، ان تمام چیزوں کی فکروں میں نہ رہو، کیونکہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ یہ چیزیں ساری مل جائیں گی، لیکن تم ڈھونڈو اس کی بادشاہت تو یہ ساری چیزیں تمہیں مفت میں مل جائے گی، جس کی توقعات آپ لگائے بیٹھے ہو۔ جو کام ہم نے پہلے کرنا ہے وہ کام ہم بعد میں کرتے ہیں، اور جو بعد میں کرنا ہے وہ ہم پہلے کرتے ہیں۔ یہی المیہ تھا، یہی ایک لمحہ فکر تھی، یہی ایک غلط ڈائریکشن تھی کہ یہودی قوم ایسے ایک بادشاہ کی تلاش میں تھے جو صرف
जो सिर्फ और सिर्फ उनको रोमी सल्तनत से आजादी दे और उनका एक अपना बादशाह हो। लेकिन खुदावंद जमीनी बादशाह के लिए नहीं आए थे, वो अपने बाप की किंगडम को स्टैब्लिश करने के लिए आए थे। हालेलुया। वो आलमे बाला की चीजों की तलाश में आपको लेके जाना चाहते थे। ये एक ऐसा खास वाकया है, ये हल्की सी को, ये एक ऐसा खास वाकया है कि जो चारों अनाजील में जो कलमबंद किया गया है, आप देखते हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 21वां बाब जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ ये वाकया हमें नजर आता है। जब हम मरकुस की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 11वां बाब उसका मुताला करते हैं तो ये वाकया वहाँ पर कलमबंद है। जब हम लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 19वां बाब का जब हम मुताला करते हैं तो ये वाकया वहाँ पर कलमबंद है। और जब हम यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 12वां बाब का जब मुताला करते हैं तो ये वाकया वहाँ पर कलमबंद है। यानी कि चारों अनाजील ने अंजीले अरबा में ये वाकया कलमबंद हुआ है। इस वाकये की बड़ी अहमियत है। हालेलुया। इस वाकये की बड़ी अहमियत है। ये वाकया ज़ाहिर करता है कि इब्तदाई कलीसिया के नज़दीक ये इंतहाई आम नुक्ता था, ये इंतहाई आम नुक्ता था। इसलिए आज हम खजूरों की डालियां लिए हुए हाथों में जो लहरा रहे हैं खजूर की डालियां, ये जस्ट नमाइशी नहीं है, ये फतहमंदी का निशान है कि यीशु फाते है। अगर वो फाते है तो हम भी फाते हैं। हालेलुया। इब्लीस हारा हुआ है और यीशु जीता हुआ है। अगर यीशु जीता हुआ है तो हम भी जीते हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा था मेरा गला खराब है, मैं स्लोली कहूंगा लेकिन आपने मेरी नकल नहीं उतारनी। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू। फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉफेसी जो यीशु मसीह में सारी नबूवतें मुकम्मल होती हैं। ये वाकया दर हकीकत एक अजीम नबूवत की तकमील है। ये वाकया यीशु मसीह का जो एक एक एक्ट है, एक एक अमल है, एक एक रिएक्शन जो उसने किया है, ये प्रोफेसीज की छत्र छाया में हुआ है। यीशु मसीह ने खुद से अपनी जात से कुछ नहीं किया गया है। उनके बारे में प्रोफेसीज हुई थी। जिस तरह वो मारा गया, वो सलीब पर चढ़ाया गया, उसके ऊपर जुल्म सितम की अंबार लगाए गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसके पसली में नेजा लगाया गया, उसकी मुंह पर थूका गया, उसको सताया गया। ये सारी चीजें बाइबल मुकद्दस में पहले ही कह दी गई थी। हालेलुया। ये नबूवत जो अभी मैं आपको बात बताने वाला हूं कि तकरीबन 500 साल पहले नबी ज़करिया ने ये कही। ज़करिया नबी का सहीफा उसका 9वां बाब उसकी 9वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर यूं मरकूम है, ए बिन्ते सयून तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है। हालेलुया। ये प्रोफेसी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से मुजस्सम होने से पहले 550 साल पहले ज़करिया नबी ने कह दी थी। हालेलुया। पानी दीजिएगा। इब्रानी जुबान के लिए जो बादशाह के लिए लफ्ज आया है वो मिलेख है। क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? मिलेख। इब्रानी जुबान में MELEKH मिलेख। इब्रानी जुबान में मिलेख बादशाह को कहते हैं। और ये बादशाह जो है वो घोड़ों पर सवार होकर नहीं आया है। आप मुझे अपना माइक दे दीजिए प्लीज, ये ग्रीन वाला। ये बादशाह जो घोड़े पर सवार होकर नहीं आया है, ये बादशाह क्या है? गधे पर सवार होकर आया है। कौन सा है? देखो कभी कीजिए। ये बादशाह इज़राइल कीजिए। ये बादशाह घोड़े पर सवार होकर नहीं आया है, ये गधे पर। भाई मेरी बात सुने, इको कम कीजिए और गेम बंद कर दीजिए।
थोड़ी सी इको, मेरा नन्हा सिपाही कंफ्यूज हो जाता है जब उसको कुछ थोड़ा सा कह देती। मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो वाक्यात हैं, ये सारे जो वाक्य हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के हैकल में ये तजस्सुम से पहले 550 साल पहले ये वाक्या रूप पजीर हो, यानी प्रोफेसी हो चुकी थी कि ये वाक्या होगा। और ये प्रोफेसी किसने की थी? जकरिया नबी ने, कि देख तेरा बादशाह आता है, वो गधे पर सवार होगा, वो हलीम होगा। और बादशाह के लिए जो मैंने आपको कहा कि लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो मिलेख है, वो मिलेख यानी बादशाह। और ये बादशाह क्या है? ये फरोतनी को ज़ाहिर करता है। और फरोतनी के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एनी, एनी, A-N-I, एनी। एनी जो है आजिज, फरोतन, वो फरोतन जो हलीम होगा। जब आप खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते मुबारका को देखें तो उनकी जिंदगी में आपको हम्बलनेस नजर आएगी, आपको आजिज़ी नजर आएगी, उनके अंदर आपको तकब्बुर नजर नहीं आएगा, अकड़पन नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो हलीम थे। उसके बारे में कहा किसी शख्स ने कि वो बादशाह था फिर भी रहा आदमी के साथ, वो बादशाह था फिर भी रहा आदमी के साथ, वो था खुदा फिर भी रहा सादगी के साथ। हालेलुया। तो ये खुदावंद यीशु मसीह की हम्बलनेस को ज़ाहिर करती है। उस वक्त में और आज भी जो कोई बादशाह या इक़्तिदार के नशे में खो रहा होता है, वो चाहेगा कि अच्छी गाड़ी में जाऊं, अच्छी सवारी इस्तेमाल करो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने गधे का इंतखाब किया है। गधा बिब्लिकली टर्मिनोलॉजी में हम्बलनेस को ज़ाहिर करता है, साबित कदमी को ज़ाहिर करता है, मुस्तकिल मिजाजी को ज़ाहिर करता है और हलीमी को ज़ाहिर करता है। जब उस वक्त के बादशाह अगर किसी से सुलह करने के लिए जाते थे तो वो घोड़े पे सवार होकर नहीं जाते थे, वो गधे पर सवारी करते थे। ये साइन है कि ये सुलह सलामती का शहजादा है, ये किसी से सुलह करने के लिए आया है। और यहाँ पे यीशु सुलह करने के लिए नहीं आया, इंसान और बाप की सुलह करवाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा कि इससे जाहिर होता है कि मसीह जंगे घोड़े पर नहीं बल्कि फरोतनी के गधे पर आया है। हालेलुया। डिवाइन अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह की इलाही हाकिमियत, डिवाइन अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट। यीशु अपने शागिर्दों को गधी और उसके बच्चे को लाने के लिए कहते हैं। यहाँ दो हकीकतें हैं। यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है आमनेशनस, आमनेशनस, वो लफ्ज है मकूफ, मकूफ इल्म, ऐसा इल्म जो इंसान नहीं, ये इल्म जो है ये खुदा की जात के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ लोग इसको इम्तियाज़े रूह भी कहते हैं, कुछ लोग इसको इल्मियत का कलाम भी कहते हैं, लेकिन ये माफूकल फितरत इल्म है। ये इल्म खुदा के अलावा किसी और के पास नहीं हो सकता है। अमेशनस, OMNISCIENC, अमेशनस यानी यीशु का माफूकल फितरत इल्म, यानी कि वो जानते थे कि किसी जगह पर एक गधी है और वहां पर ही गधी का बच्चा है, और वो अपने शागिर्दों को भेजते हैं और वो कहते हैं कि अगर कोई पूछे कि तू ये गधे का बच्चा क्यों लेना चाहता है, तो उन्होंने क्या कहा, किसको किसकी जरूरत है? तो अंडरस्टैंड करें, उनके पास अमेशनस जो इल्म था, जो उसके उनके पास नॉलेज था, अमेशनस नॉलेज जो था, मकूफुल फितरत जो इल्म था, वो उस अपने पास अपनी जात में रखते थे। यीशु को पहले से मालूम था कि गधा कहां पर बंधा है, लोग क्या कहेंगे। ये इसकी इलाही फितरत और उसकी डिवाइन जो कुदरत है उसको जाहिर करता है। उसकी इंसानी जो फितरत है उसके साथ साथ जो वो कामिल इंसान और कामिल खुदा दोनों वक्त एक था, उसकी डिवाइन पर्सनैलिटी को जाहिर करता है कि वो अपने इख्तियार से, अपनी कुदरत से ये जान लेता था कि कौन सी चीज कहां पर है। यीशु की बादशाही इख्तियार वाली बादशाही थी, वो बादशाहत रखता था। हालेलुया। आज मेरे गले की तरह साउंड भी खराब हो रहा है मेरे लिए। तो मेरे अजीजों,
یسوع کی بادشاہی اختیار والی بادشاہی تھی. یسوع کہتے ہیں خداوند کو ان کی ضرورت ہے. یعنی یونانی لفظ کے لیے جو خداوند کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کیریو. کیریو یعنی خداوند، مالک اور آقا. یہ لقب ابتدائی کلیسیا میں یسوع کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. آگے ہم پڑھتے ہیں بادشاہ کی فروتنی. 5ویں آیت. یسوع گدھے کے بچے پر سوار ہو کر داخل ہوتے ہیں. قدیم مشرقی دستور تھا کہ جنگی بادشاہ گدھے پر اور امن کا بادشاہ، جنگی بادشاہ گھوڑے پر اور امن کا بادشاہ گدھے پر سوار ہوتا تھا. یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع جنگ کرنے نہیں بلکہ نجات دینے کے لیے آیا ہے. یسوع جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ، اگر ہم مقدس پولس رسول کا فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. اگر ہم آغاز سے اس آیات کو دیکھیں تو لکھا ہے چنانچہ وہ خدا کی صورت پر تھا. کون خدا کی صورت پر تھا؟ خداوند یسوع مسیح. کون کس کی صورت پر تھا؟ چنانچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، پھر بھی اس نے اپنے آپ کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ جانا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا. خالی کر دیا. آپ نے دیکھیں اس نے جب آسمان پر تھا تو وہ کامل خدا تھا. جب وہ آسمان پر تھا تو وہ کامل خدا تھا، لیکن جب وہ زمین پر آیا تو کامل خدا بھی ہوا اور کامل انسان بھی. ہاللویا ہاللویا. تو اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، انسان کو چھوڑ سکتا ہے لیکن خدا کو نہیں چھوڑ سکتا. ابلیس نے یہی بھول کی. وہ کہتا تھا کہ جس طرح آدم اول کو اس نے گمراہ کر دیا، وہ گراوٹ میں چلا گیا، شکست دے دی، اسی طرح آمد ثانی کو بھی میں شکست دے دوں گا. وہ صرف ایک کامل انسان تھا لیکن وہ بعد میں اس کی کاملیت چلی گئی. جب بنایا گیا آدم تو کامل تھا، جیسے اس نے گناہ کیا تو کاملیت چلی گئی. لیکن یہ صرف ایک انسان نہیں ہے، یہ کامل انسان اور کامل خدا ایک ہی وقت میں یہ دونوں پرسنالٹی کی زندگی میں کام کرتی تھی. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کو چھوڑ سکتا ہے، خدا کو نہیں چھوڑتا ہے. لکھا ہے کہ اس نے اپنے اقتدار کو چھوڑا. لکھا ہے کہ جس کے سامنے فرشتے آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن نوری زمین پر اس کے منہ پر تھونکتے ہیں. یہ اس کی عاجزی کا نقطہ عروج ہے. یہ اس کی عاجزی، اس کی حلیمی کا نقطہ عروج ہے. اور یہ بات پام سنڈے ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے عاجزی، حلیمی، انکساری کا مظاہرہ کرنا ہے. غصے سے نہیں، ہم نے محبت سے روحوں کو جیتنا ہے. ہاللویا. اور ارشاد اعظم کی تکمیل کرنی ہے. لکھا ہے کہ بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کر لی. نوکر بن گیا. خادم، نوکر خادم کی صورت اختیار کر لی. انسانوں کے مشابہ ہو گیا. وہ خدا تھا، وہ مجسم ہو گیا. وہ خدا تھا، وہ مجسم ہو گیا. اس شکل اختیار کر لی. لکھا ہے اور اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. یہ اس کی محبت، اس کی حلیمی اور اس کی تابعداری اور اس کی فرما برداری کو ظاہر کرتی ہے. ہاللویا ہاللویا. تو پام سنڈے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے اندر سے ہر طرح کی وہ چیزوں کو نکال دینا ہے جو ہمیں خدا کی محبت سے جدا کرتی ہے. ہاللویا. سمبلز، پام برانچز، کھجوروں کی شاخیں اور کپڑے بچھانا، یہ سمبلز تھے. اپنے کپڑے راستے میں بچھاتے تھے. کون؟ لوگ آپ کی طرح. اور آج ہم کسی کی محبت میں اچھے کھانے بناتے ہیں، اچھا اس کو ویلکم کرتے ہیں. تو اس وقت جب یسوع مسیح ہیکل میں آئے عید فصح کے وقت تو لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا. غریب غربا لوگ تھے، کھجور کی ڈالیاں پکڑتے ہیں اور کپڑے اتارتے ہیں.
अपने कपड़े रास्ते में बिछाते हैं, खजूर की शाखें बिछाते हैं। खजूर की शाखें फतह की अलामत थी। वो इससे पहले कि यीशु मसीह हैकल में आते, उसने बैतनिया में 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया हुआ था। और लोग वहां पर, जो फरीसियों का इलाका था, जिस तरह हमारी सराउंडिंग में कैथोलिक है ना, कैथोलिकिज्म, वहां पर जो बैतनिया जब था वो फरीसियों का इलाका था। और फरीसियों का मानना था कि हाँ, जो फरिश्ता है वो 3 दिन तक जो है वो कब्र के इर्द गिर्द रहता है और मुर्दा जिंदा हो सकता है। यीशु 4 दिन बाद ही क्यों आया? वो एक बिब्लिकली पैटर्न था, उसके पीछे लॉजिक था कि फरीसी अगर वो 2 दिन पहले आ जाता, 3 दिन पहले आ जाता, तो उन्होंने कहना सी ऐसे पहले भी कुछ जिंदा कर ही सकता सी, लेकिन 4 दिन का मुर्दा कभी किसी ने जिंदा नहीं किया। तो ये यीशु मसीह की ताकत थी, क्योंकि वो कहते हैं कि क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गोया वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। तो यीशु मसीह ने मुर्दा लाजर को जिंदा किया, क्योंकि वो क़यामत और जिंदगी है। और क़यामत का मतलब क्या है? मुर्दों में से। तो जब यीशु पर पास है तो क़यामत आदि लोड़ा है। हालेलुया। तो लाजर जी उठा, तो लोगों ने ईमान ले आया कि यही वो यीशु मसीह जिंदे वास्ते यहूदी हर घराने च कुड़ी नूं कुआरा रखदे सी। ये ख्रिस्तुस है, ये वही यीशु मसीह है जिसके बारे में लिखा है कि तुम्हारे नबियों में से एक नबी को बर्पा करूंगा जो तुम्हें निजात और मखलसी देगा। तो जब यीशु आया हैकल में, तो लोगों ने खजूर की शाखें दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो यीशु से कुछ और डिमांड कर रहे थे। आज भी हम एक दूसरे से कुछ और डिमांड करते हैं। शायद वो डिमांड से ज्यादा आप मुझे देना चाहें, शायद आप उस मेरी तवक्कुआत से बढ़कर मेरे साथ कुछ करना चाहें, शायद आज मैं आपके साथ आपकी तवक्कुआत से बढ़कर कुछ करना चाहूं। आपके अंदर क्या? शायद हम सबसे ज्यादा खुदा हमारी तवक्कुआत से ज्यादा हमें देना चाहे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वक्त पर खुदा आपको सरबुलंद करेगा, वक्त पर सर बुलंद करेगा। उनकी यहूदियों की तवक्कुआत क्या थी? सिर्फ और सिर्फ भाई साडा एक बादशाह लग जाए, सानू कुर्सियां मिल जाए, ये रोमी अंपायर हमसे खत्म हो जाए, इनकी ताकत, इनकी हुक्मरानी, इनका तसल्लुत हमसे खत्म हो जाए। लेकिन खुदा उसको इससे बड़ा देना चाहता था। वो जो कामिल खुदा और मुजस्सम खुदा था, वो मुजस्सम कलाम था, वो जो कामिल खुदा और कामिल इंसान था, वो कलमा उन तमाम लोगों को और आज हमको हमारी बसात से ज्यादा देना चाहता है। वो हमें अपने 7 तख्तों पर बैठाना चाहता है। वो हमें ये मौका फराहम करता है कि हम मटीरियलिज्म से बाहर निकल आ जाए, हम माता प्रस्ती से बाहर आ जाए, हम खुदा के साथ बैठे हो और कौमों और कबीलों का इंसाफ करें। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, मजा नहीं आया। हालेलुया। आप सो जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहूदी रवायत में कौमी निजात की अलामत थी खजूर। लोग हैकल पर खजूर की तस्वीरें बनाते थे क्योंकि ये फतह की निशानी थी। और जो ईमानदार मर जाते थे उनकी कब्रों के ऊपर खजूर की बना देते थे। ये निशान था, ये साइन था उस वक्त की रवायात के मुताबिक। तो आगे बढ़ते हैं। होशाना का नारा क्यों लगाया गया? आयत 9 में लोग पुकार रहे थे, होशाना इब्ने दाऊद का होशाना। हिब्रू में होशाना के लिए लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है होशियाना, होशियाना। इसको पर होसाना भी कहते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में होशाना भी कहते हैं। लेकिन हिब्रू जो एक्सेंट है, जो तलफ्फुज है, वो अलग है। इंग्लिश में होसाना कहते हैं, उर्दू में होशाना कहते हैं, और हिब्रू में होशियाना कहते हैं। HOSHIANNA, होशियाना। मानी अभी बचा ले, अभी बचा ले। जब आप वो कह रहे थे ना होशाना होशाना, यहूदियों ने बड़ी अगला करी, रोमियों ने वो कहते ना चुप कराओ कि कहते फिर, तो वो जानते थे कि ये लफ्ज का मतलब क्या है। क्योंकि वो कहते थे भाई बचाना कितने को है, किससे बचाना है। और वो यीशु कह रहे थे होशाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है, होशाना हमें बचा ले, हमें नजात दे। उन्होंने कहा साडे कोल तैयार है, असीं तुहानूं नजात देनी है, सानू असीं तुहानूं बचाना है, तुसीं इहदे कोल मंगदे पिओ। तो यीशु ने क्या करे, चुप कर गए ना तो पत्थर चला उठणगे।
अंडरस्टैंड करें, होशाना का मतलब है हमें बचा ले। कभी आप मुश्किलात में हो, कभी आप परेशान हो, तो आप ये लफ्ज कह सकते हैं, अगर ज़रा दुआएं नहीं आती तो होशाना, मुबारक है जो खुदावन के नाम से आता है। होशाना, होशाना, हमें बचा ले, हमें निजात दे दे। ये अल्फाज ज़बूर से लिए गए हैं, और ज़बूर 118 उसकी 25वीं और 26वीं आयत में हम पढ़ते हैं, ए खुदावन बचा ले, ए खुदावन बचा ले, ए खुदावन खुशहाली बख्श। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। हमने खुदा के घर से दुआ मांगी है और खुदा ने हमें दुआ दी है। इब्तदाई कलीसिया में इब्तदा में ये दुआ थी, बाद में ये तारीफ का नारा बन गई है। हालेलुया। इब्तदाई दौर में ये दुआ के तौर पर पेश की जाती थी, लेकिन बाद में ये तारीफी नारा बन गया है। होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। आलने वाला पर होशाना। हालेलुया। मेरा गला कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ